شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے سپاہی ساجد عظیم شہید ہو گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمران۔ عمران بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں، ISPR کی جانب سے کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، یہ جھڑپ جو ہے جھڑپیں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزہ میں ہوئی۔ سیکورٹی فورسز نے سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان دونوں جھڑپوں میں شدید جو ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں ایک دہشت گرد جہنم واصل جبکہ ایک دہشت گرد زخمی ہوا۔ شدید فائرنگ کے دوران زخمی جو ساجد اعظم ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سپاہی ساجد اعظم کی عمر 31 سال، تعلق جو ہے ان کا کوٹی آزاد کشمیر سے تھا۔ شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جو ہے وہ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہ جو دوسرا انسیڈنٹ ہے شمالی وزیرستان کا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی وارث خان نے جہاں میں شہادت نوش کیا۔ سپاہی وارث خان کی عمر 27 سال اور ان کا جو تعلق تھا وہ ضلع کرک سے ہے۔ ٹھیک ہے، محمد عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وحشیانہ تشدد میں 2800 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینیوں کی غزہ سے مغربی علاقوں کی جانب نقل مکانی جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے، ہر طرف چیخو پکار، مردہ خانے بھر گئے، میتیں ریفریجریٹر میں رکھی جانے لگی، خوراک ناپید، پانی کی سپلائی بند ہو گئی، بچے بوڑھے بلبلانے لگے، فوڈ سٹوریج کی گاڑیاں بھی میتوں کو منتقل کرنے کا کام کرنے لگیں۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں میں 30,000 سے زائد مکانات تباہ، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ غزہ میں 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی، غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی کمی نہ آئی، اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 افراد شہید۔ غزہ میں ملبے کا ڈھیر، فلسطینی وزارت داخلہ حکام کے مطابق ابھی تک ملبے تلے 1000 سے زائد لاشیں پھنسی ہوئی ہیں۔ فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے زمینی حملوں کے پیش نظر اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ صہیونی فورسز نے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا اور ان پر بھی وحشیانہ تشدد جاری ہے۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین اور بھارت سمیت دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن میں نسب بادشاہ چارلس کے تاریخی مجسمے کے ہاتھ میں فلسطینی پرچم تھما دیا گیا۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ عالمی سطح پر بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، بھارت اور اسپین سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ امریکہ میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، مظاہروں میں شریک افراد نے ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ فضائیں فری فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے بھرپور انداز میں اظہار کیا گیا۔ بھارتی مسلمان بھی فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے لگے۔ دارالحکومت نئی دہلی کی سڑکیں فلسطینی پرچموں سے بھر گئیں۔ اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوراً جنگ بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے کا مشن، عالمی رہنماؤں کے رابطے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا عرب ممالک کا دورہ مکمل کر کے واپس اسرائیل پہنچ گئے۔ روسی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू से मुलाकात करके अपने दौरे के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। चाइना के वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में हमास इसराइल जंग बंदी के बारे में तफसीली गुफ्तगू। तर्जुमान चीनी महकमे ख़ारजा के बयान के मुताबिक चाइना फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए जल्द अपना वफ्द मशरिक़ वस्ता भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एड चीफ की जानिब से भी बयान सामने आ गया है। मार्टिन ग्रिफ्टिन्स कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए काहिरा जाऊँगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब मंजर आम पर आ गए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर मुसलसल लोगों की जहन साजी की गई। PTI चेयरमैन अवाम को तशद्दुद की राह पर लेकर गए। साइफर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI रहनुमा फारूक हबीब मंजर से गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आ गए। लाहौर में ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फारूक हबीब का कहना था कि 9 मई के वाक़े को पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसा रवैया इख्तियार किया गया कि लोग अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। PTI के चेयरमैन ने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद राह इख्तियार की। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंडसेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। फारूक हबीब का मजीद कहना था कि साइफर के मामले में कौमी मफाद को सामने नहीं रखा गया। PTI चेयरमैन ने साइफर को सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। हमें इखलाकी सबक सिखाया जाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने कौलो फेल में तजाद था। फारूक हबीब ने कहा कि तोशा खाना केस पर दूसरी जमातों के रहनुमाओं पर तनकीद के लिए कहा जाता रहा, लेकिन खुद तोशा खाना से घड़ियां ली। जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। साइफर को सियासी अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से जब मालूम है कि मतलब आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुताल्लिक़ अदराक होता है। फारूक हबीब ने अपनी गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 हफ्तों से अपनी फैमिली के साथ राब्ता मुनक़ता किया था ताकि फैसले के बारे इत्मीनान से सोच सकूं। ईरान वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को पहुँचाने के लिए मुतहरिक। ईरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लारी अड्डे का दौरा किया गया है। मोहसिन नकवी की बसों में सवार मुसाफिरों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से किरायों में कमी के बारे में दरियाफ्त किया। तफसील बताएंगे लियाकत अंसारी। लियाकत बताइएगा इस विजिट बारे। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को पहुंचाने के लिए एक तरफ तो आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आला सतह का इजलास किया और उसमें ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी का टास्क दिया और अब फौरी तौर पर इस टास्क को चेक करने के लिए वो लारी अड्डे पहुंचे हैं। रात गए और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाले बसों में मौजूद मुसाफिरों से मुलाकात की और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद मुसाफिरों से किराए की कमी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर बाद मुसाफिरों ने बताया कि वो पेशावर जा रहे हैं और 2200 रुपया जो किराया था अब 2000 हो गया, जबकि फैसलाबाद जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि 850 से कम होकर किराया 800 रुपए हो गया। ताहम बाद मुसाफिरों ने किराया कम न होने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के तनासब से ट्रांसपोर्ट में किराए में कमी के पर जो है उसको अमलदरामद यकीनी बनाने के लिए हदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि सूबे के अवाम को रिलीफ देना जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है और उसे हर तरह से वो निभाएंगे। तो यूं निगरान वज़ीर आला ने आज इजलास का न सिर्फ फैसलों तक महदूद नहीं रहे बल्कि उसको चेक करने के लिए वो खुद लारी अड्डे पहुंचे और ट्रांसपोर्ट में कमी की सूरत जो किराए हैं उसमें कमी की सूरत हाल को खुद मुशाहदा भी किया और मुसाफिरों से भी बातचीत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने GHQ में मुलाकात की है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी काविशों को सराहा। GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू-चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।
निगरान पंजाब हुकूमत का कहना है कि स्मोक में कमी के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। काबीना इजलास के बाद स्कूल बंद करने का फैसला भी किया जाएगा। हर पीर को इजलास होगा कि बुध को स्कूल बंद होंगे या नहीं। पेट्रोल की कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने का अज़्म किया है। DGPR लाहौर में निगरान सूबाई वुज़रा आमिर मीर, मंजूर कादिर और इब्राहिम मुराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में हुए फैसलों से मुतल्लिक निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना था कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की कमी के असरात अवाम तक पहुँचना लाजिम है। कोशिश कर रहे हैं कि स्मोक जो है उसमें सूरत हाल जो है उसको बेहतर किया जाए, स्मोक में कमी लाई जा सके। तमाम डिपार्टमेंट्स एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें मजबूरी में आके तो फिर दफ़ा 144 का भी नफाज किया गया और स्टर्न एक्शंस लिए गए तमाम डिपार्टमेंट्स ने। पेट्रोल की कीमत में जो 40 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है उसके समरात जो हैं वो आवाम तक जाने चाहिए। निगरान वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर का कहना था कि बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। बुध को स्कूलों को बंद करने का फैसला काबीना में होगा। हर पीर छुट्टी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। हुकूमत को बच्चों की वेलबींग, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऐसा फैसला नहीं है जो एक मुस्तकिल फैसला होगा कि हर बुध को स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसको हर वीकली, हर मंडे को एक मीटिंग करके जायजा ले करके उसके बारे में फैसला किया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के रेट कम करने का कहा है। स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के लिहाज से चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। ये रिपोर्ट देखिए। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के लिहाज से चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं, जबकि जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त का मुतालिका फोरम ट्रायल कोर्ट है। चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफुजात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रजू करें। अदालत ने अपने फैसले में सेक्रेटरी दाखिला को इस्लामाबाद जेल की तामीर के काम को तेज करने की हिदायत भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमिन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया कि 7 दिनों में मालूमात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा है कि 100 से ज़ायद ममालिक में मालूमात तक रसाई के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मालूमात तक रसाई शहरियों का हक करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह का फैसले से अदम इत्तेफाक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को फीस वापस करने का भी हुक्म दिया। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने फैसले में नोट लिखते हुए कहा कि मालूमात के उसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं आती। अदालत ने 27 सितंबर को दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया था। अक्टूबर का वस्त आते ही मौसम ने करवट ले ली है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में पड़ने वाली बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। लाहौर में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार, आसमान पर सुरमई बादलों का राज रहा। शहर इक़्तिदार में भी बारिश से मौसम सुहाना होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुजरांवाला, जेहलम, दीना, कसूर, झंग, टोबा टेक सिंह, रिनाला खुर्द और पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। पेशावर, मालाकरण, दाऊद खेल में भी बारिश के बाद तेज सर्द हवाएं चलने से सर्दी हो गई। कलाई इलाकों और पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी का आगाज हो गया। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, वादी अदीपा और नीलम वैली के बुलंद पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकाम रत्ती गली, झील, केल और पीर चनासी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात दस्तोर के सियाहती मकाम देवसाई, बर्जिल टॉप, चौंटर टॉप, काला पानी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फ पड़ी।